जनरलाइज करता है। इनफैक्ट आप लोगों ने नॉर्म स्पेस की जब हम बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्म स्पेस, यू नो वेरी वेल, नॉर्म जनरलाइज लेंथ। ओके, ये लेंथ को जनरलाइज कर रहा था ना, लेंथ ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो ये किसी भी वेक्टर की लेंथ को जनरलाइज कर रहा था। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक मिनट में चेक करता हूँ। नॉइज है कि आवाज स्लो आ रही है? हेलो, हमें तो ठीक आ रही है। सर मुझे कम आ रही है। आप स्पीकर को जरा अपने को जरा करेंगे जरा फुल वॉल्यूम। ओके सर। Okay, in a norm space we can add vectors and multiply vectors by scalars. Okay, just as in elementary vector algebra. Furthermore, the norm on such a space generalize the elementary concept of length of a vector. Okay, when we are talking about a vector space, always remember that we are talking about two things: adding vectors and multiplying vectors by scalars. And when we are talking about norm space, we are talking about the length of a vector. Okay. However, what is still missing in general norm spaces and what we would like to have if possible, it's an analog of familiar dot product. Okay, तो जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी बात अगर हम बात करें तो वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट की तरफ लेके देगा. Dot product is missing and something is here. Dot product is missing and second thing is the condition of orthogonality, perpendicularity. Okay, तो ये दो बातें जो ये नॉर्म स्पेसिस में इन जनरली नहीं हमारे पास अवेलेबल होते हैं. ओके, तो अब हम इन दो बातों की तरफ अगर हम अपनी टेंशन करेंगे तो हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की तरफ हम मूव करेंगे. ओके, which are important tools in many applications. Hence, the question arises whether the dot product and orthogonality can be generalized to arbitrary vector space. The answer is yes. In fact, this can be done and leads to inner product space and complete inner product space called Hilbert spaces. We have, ऑर्बिट्ररी स्पेसिस क्या होता है? sorry, सर ये लिखा हुआ ना, कैन बी जनरलाइज्ड टू आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेसिस, तो इसका क्या मीनिंग है? okay. Whether the dot product or orthogonality can be generalized to arbitrary vector space. तो जो हमारे पास dot product है, when we are talking about the dot product in fact we are talking about dot product and Rn. Okay, normally we are talking about dot product and Rn. Can dot product can be generalized to arbitrary vector space? कि अगर मेरे पास कोई arbitrary vector space उस पे भी हम इसी चीज को generalize कर सकते? The answer is yes. This can be done and leads to the inner product space and complete inner product space, and which are called the Hilbert spaces. Okay, clear? जी. So there are two things. In fact, first one is the inner product space and second is the Hilbert space. In fact, a complete inner product space is called a Hilbert space. We'll see later what are the Hilbert spaces, but first of all we'll see some inner product spaces and a proper definition for the inner product space. Okay, moreover, inner product space are special Nord spaces. So that means there are some Nord spaces which are not inner product spaces. Okay. Historically, they are older than the general norm spaces. The theory is richer and contains many features of Euclidean space, a central concept being orthogonality. Okay. तो मैं अभी यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ आता हूँ. Important concept, brief orientation about main concept. An inner product space is a vector space with an inner product defined on it. Okay, what's an inner product? We have not seen yet, but
believe that inner product space of function. Okay, an inner product space X is a vector space with an function inner product defined on it. The later generalize the dot product of vectors in three-dimensional space and it's used to define norm and orthogonality. Okay, Hilbert space is a complete inner product space. Up till yet now, we have only have the feeling that there is a generalization of usual dot product, which is called the inner product space, and something the orthogonality. Okay, so how we can define that? What are the importance of these things? The representation of H as a, in fact, Hilbert space is a complete inner product space. The theory of inner product and Hilbert space is richer than that of general norm spaces and Banach spaces. Banach space is complete norm space, and Hilbert space is a complete inner product, space. Okay. What are the features of this Hilbert space? Representation of H as a direct sum of closed subspace and its orthogonal complement. Okay. Orthogonal set and sequence set corresponding representation of elements of H. This representation of boundary linear functional by inner product space products. The Hilbert adjoint operator. These are somehow some features of Hilbert space. We will not completely touch all these points, but some of them we'll see in our lectures. Okay, so here is the a definition for inner product and inner product space, and hence the Hilbert space. An inner product space, which are also known as pre-Hilbert space, is a vector space X with an inner product defined on X. Okay, what's an inner product? And a Hilbert space is complete inner product space. Here an inner product on X is a mapping of X cross X into scalar field K of X. Okay, so inner here comes product space और Hilbert space एक ही चीज है. बेटा अभी तक जो मैं बार बार यही तो एक्सप्लेन करी जा रहा हाँ, हूँ. बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं ना, वो उसमें इतनी ज्यादा पॉइंट्स हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा, सारा मिक्स हो रहा है. Okay. ऊपर वाली डेफिनेशन भी सारी ऐसी हो रही है. अभी डेफिनेशन हमने की नहीं, अभी तो सिर्फ कंसेप्ट की बात हो रही वो थी. जो ऊपर आपने करवाई है ना, उसमें इतने ज्यादा पॉइंट्स थे, वो इतनी जल्दी से आपने करवाई है, वो सारा मिक्स हो गया. ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको समझ आ रही है? ठीक हो गया? ये बात हमने पहले की है. ठीक है, इसको सर याद जो रखें. ऊपर आपने डेफिनेशन करवाई वो प्लीज दोबारा रिवाइज करवा दें. वो सर उसकी जो पहली वाली लाइन है ना, वो डेफिनेशन मैंने अभी कौन सी की है? तो ये जो ऊपर वाली थी ना, इससे पहले जो हमने पढ़ी है. आई एम सॉरी, मैंने डेफिनेशन कौन सी की? डेफिनेशन तो पहली यही है 3.1.1. यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन है? फिर नीचे करें, नीचे. ये डेफिनेशन हाँ, नहीं बस है. यहाँ पे ये सर, डेफिनेशन यहाँ से नहीं मैं है कह रही हूँ. बेटा. ये तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट किस चीज, डॉट प्रोडक्ट जो आपने पहले बात पूछी थी कि डॉट प्रोडक्ट को जनरलाइज कैसे किया जा रहा है ना, तो यही वही बातें दोबारा उसने उसको बताया. और ये जो हिल्बर्ट स्पेस के बारे में लिखा हुआ है कि उसके एडवांटेज क्या, उससे हम क्या कर सकते, तो अभी आपको इन पॉइंट्स की इनफैक्ट उस तरह सर से ये जो समझ. लिखा हुआ ना, हिल्बर्ट स्पेस, ये चीज है कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस. तो मैं ये The कह रहा theory हूँ. of inner product and Hilbert spaces is richer than that of general normed and Banach spaces. हाँ, तो ये समझ आ रही है. नहीं. ये जो पार्ट मैं अभी आपको हाईलाइट किया, इसकी अगर आपको समझना है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आगे हम देखेंगे. अब अगर आप इस पार्ट की बात कर रहे हैं ये, तो ये बहुत इजी है. इसमें आप सिर्फ एक बात याद रखें कि हिल्बर्ट स्पेस जो है वो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है. सेकेंडली हिल्बर्ट स्पेस जो है, इसकी अगर हम एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से बात करें तो नॉर्म स्पेसिस से ज़्यादा इसको अगर हम देखें तो ये ज़्यादा यूजफुल है. The उसमें complete inner product space और inner product spaces same ही है. कैसे सेम हो सकते हैं? तो क्या वहाँ पे डिफरेंस है? कंप्लीटनेस का फर्क है. नॉर्म स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस में, नॉर्म स्पेस और बनाक स्पेस में क्या फर्क है?
क्या एक है? नहीं, क्या फर्क है? कंप्लीटनेस का। तो इसी तरह से इनर प्रोडक्ट और हिल्बर्ट स्पेस में फर्क है। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। जी। Okay, so what's an inner product? Inner product on X is a mapping. Okay, it's a mapping from X cross X to scalar field. Okay, तो आपके पास इनर प्रोडक्ट जो होगा एक मैपिंग होगी X क्रॉस X से स्केलर फील्ड के में, ठीक है, और वो सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, उसको भी हम देखते हैं। क्लियर? तो जी। ये हमारे पास 4 जो एक्सियम है, अगर ये हमारे पास फुलफिल करे ये फंक्शन, तो हम इसको पे कहेंगे ये इनर प्रोडक्ट है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे एक याद रखिएगा कि नॉर्म जो था वो हमारे पास कहाँ से, x से r में फंक्शन था, ठीक है। जो डिस्टेंस था वो x क्रॉस x से r में एक फंक्शन था। इनर प्रोडक्ट x क्रॉस x से k में फंक्शन है, r में नहीं है, स्केलर जी। फील्ड में। क्लियर? ये बात याद जी। रहेगी। जी। एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? फर्स्ट वन इज दैट कि अगर आप इनर प्रोडक्ट लें x प्लस वाई और z का, तो इसमें आपके पास उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जस्ट लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट में अगर x प्लस वाई डॉट z कर रहे हैं, तो आपके पास x डॉट z प्लस वाई डॉट z। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक हो गया। ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे है। क्लियर? जी। जी सर। सेकेंडली कि हमारे पास स्केलर मल्टीपल जो है, उसमें अगर हमारे पास ए जो है, अल्फा जो है वो स्केलर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो, तो उसको टेक आउट कर सकते हैं हम बाहर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे एक क्वेश्चन है। फर्स्ट में ये क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि अगर आपके पास सम इस साइड पे हो रहा हो और अगर स्केलर इस साइड पे आ रहा हो, उसके बारे में अभी थर्ड प्रॉपर्टी को देखिएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर x और y का इनर प्रोडक्ट है, तो y और x के इनर प्रोडक्ट का कंजुगेट होगा। -5। नो कंजुगेट, कंजुगेट इज समथिंग डिफरेंट। आपके पास अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास a प्लस आयोटा b है, तो इमेजिनरी z के का साथ कंजु माइनस आ जाएगा। यस, लेकिन आप माइनस ऑफ z करेंगे तो वो माइनस a माइनस आयोटा b, तो दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है ना। देखें, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये के, ये आपका आर भी हो सकता है, ये आपका सी भी हो सकता है। स्पेसिफाइड नहीं है। देखें, इट डिपेंड्स अपॉन एक्स। आपके पास एक्स जो है वो वेक्टर स्पेस आर के ऊपर है या सी के ऊपर है। तो अगर वो आर के ऊपर है तो उसमें तो कॉन्जुगेट वही होगा, अगर वो सी के ऊपर है तो उसमें कॉन्जुगेट जो होगा वो इस तरह से होगा। तो ये जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है ना AXY, और फिर हम्म। उसमें अल्फा बाहर निकाली, सही ये डायरेक्टली ऐसे ही अप्लाई करेंगे या कोई मेथड होगा जिसके जरिए हम इसको अल्फा को बाहर निकाल दिया करेंगे? नहीं बेटा, इसमें कोई मेथड नहीं, ये तो एक्सियम है, जी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम जैसे कोई स्टार्ट में थ्योरी को डेवलप करते हैं, तो उस वक्त हम कुछ एक्सियम्स बता रहे हैं कि मीटर पे ये एक्सियम है, तो जस्ट लाइक लेकिन ये जब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैं तब की बात कर रही हूँ। तब भी आप इसको ऐसे ही बाहर निकालेंगे फर्स्ट प्लेस पे। अगर सेकंड प्लेस पे हुआ तो उसको निकालने का अभी मैं आपको बताता हूँ। ये सर बात इसके समझ आ रही है? एग्जांपल्स करेंगे हम? जी ऑफ कोर्स करेंगे। जी ठीक। ये समझ आ गई बेटा? जी आगे। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको अच्छी तरह से। देखें, आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा होगा ए डॉट पी ऑलवेज, यहाँ पे ए, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं ए बी जो है ना वो वेक्टर्स के तौर पे ले रहा हूँ, तो वी v1 v2 का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू ये आपने
रियल में इस तरह से किया होगा, लीनियर अलजेब्रा में किया होगा, ऐसे ही है। जी बेटा, ठीक है। जी सर। ओके, लेकिन अगर आपके पास जो वेक्टर स्पेस है वो आर की बजाय सी के ऊपर है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, तो इन दैट केस आपके पास उसका कॉन्जुगेट आएगा, ठीक है, कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो ये सी बात ना को हो हमारे पास। आर हो तो फिर तो वही आ जाएगा ना। अगर हमारे पास आर है, अगर एक कोई वेक्टर स्पेस है ओवर, तो फिर उस केस में इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा और इनका इनर प्रोडक्ट बराबर होगा, ठीक नो हो सर, गया। उसने कॉन्जुगेट लगाया हुआ ऊपर। बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप इस पॉइंट को नहीं देख रहे। सर लेकिन उसने मेंशन तो नहीं किया हुआ कि ये सी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो। ओके ओके, मैं इसको आपको बता देता हूँ, अभी बताता हूँ। आप मुझे ये बताएं, अगर आपके पास एक मिनट कीजिएगा मुझे, आपके पास अगर कोई एक नंबर ए है, ठीक है, और वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, बताएं बेटा। एक इक्वल ही होगा सर। ए ही होगा। शाबाश, इतने सारे लोगों को इस बात का पता है, वेरी गुड। तो बस हम आप नहीं बोल रहे, आपको नहीं पता। सर मैं ओके ये बात कर रही हूँ, उसने बताया तो नहीं ना। अच्छा बेटा, बात ये है कि अगर ये कोई रियल नंबर है तो कॉन्जुगेट करेंगे तो वो तो वही आ जाएगा ना। अच्छा ठीक हो गया, समझ आ रही बात। सर, अब आगे वो मैं यही सोच रही थी कि उसने मेंशन तो नहीं किया होगा ना। ओके, अब यहाँ से अब मुझे ये बताएं कि अगर, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास एक्स कोमा अल्फा वाई है, तो इसमें अगर आप अल्फा को बाहर लेके आना चाहें तो किस तरह से अल्फा पाएगा। ये अभी तक 3 प्रॉपर्टीजों की, इससे आप देख के मुझे बताएं किस तरह से बाहर आए। इसका कंजुगेट पहले ले। पहले अगर हम इसका देखें, अगर हम इसको उल्ट करें, ठीक है, सर एक्स तो वाई इंटू अल्फा आ जाएगा। इनटू एक्स आ जाएगा और इसका कॉन्जुगेट बाय द थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड एक्सियम, ठीक हो गया। अब अल्फा को टेक आउट करेंगे सेकंड से, तो अल्फा इंटू वाई कोमा एक्स होल का कॉन्जुगेट, ठीक हो गया। और कॉन्जुगेट की क्या ये प्रॉपर्टी है कि दो नंबर का प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट जो होता है वो उनके हमारे पास जो नंबर है उनके कॉन्जुगेट के अलग के बराबर होता है, हम्म। ठीक हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोबारा से वही अच्छा, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, जी क्लियर हो गया अब बात। यस सर। जी। ओके, अब आप लोगों ने मुझे इसी तरह से बताना है कि आपके पास सम अगर इस साइड पे हो तो वो किस तरह से होगा, जिस तरह से ये करके बताया ना, अभी करके मुझे ज़रा बताएं कि ये मैं सम वाली लिख देता हूँ, आपने मुझे बताना है, प्लीज़ मुझे बताएं। एट एक्स प्लस वाई। ये आपके पास किसके बराबर होगा, सॉल्व करके बताएं। जी बच्चे,
हाँ जी जी बेटा, इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए। सर हो गया। बताएं जी किसके बराबर होगा। फिर इसका x, y प्लस x, z। जी यही आ रहा है सभी लोगों का। जी सर x, z। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। एक्स कोमा से ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसी है वो भी इस तरह से आउट करते हैं। इनफैक्ट जब अगर मैं इसको आप लोगों को सॉल्व करूं तो ये इस तरह से होगा कि ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस जी कोमा एक्स का कंजुगेट। ओके, अब इसमें अगर अलग करें इसको तो y कोमा एक्स का कंजुगेट प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा z कोमा एक्स का होल का कंजुगेट, ये भी अलग हो जाएगा। तो फिर आपके पास वही आ जाएगा जो आप बता रहे हैं। क्लियर? यस सर। No, see the last axiom. The last axiom says that inner product of x and x is always greater or equal to 0. Okay, and inner product of 0, inner product of itself is equal to 0 if and only if x equal to 0. This is equal to 0 if and only if x equal to 0. यूज केस में 0 होगा अगर x 0 होगा। जी, इस बारे में कोई कमेंट करेंगे? Okay, don't want to say anything. जी क्लियर है ये बात? जी सर। यस सर। Next is an inner product on x defines a norm on x given by this. तो उससे आप नॉर्म इस तरह से ले सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू ऑब्जर्व दैट कि आपके पास कोई एक वेक्टर था जिसका आप डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या बन रहा था? p स्क्वायर। ये आप लोगों ने देखी हुई है ना प्रॉपर्टी लीनियर अलजेब्रा में। जी तो जी बिल्कुल। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि norm of x can be defined as this and it satisfies all the axiom of norm, and hence a metric is defined like this. So if we visualize that, so here comes the metric spaces and here are the norm spaces and here are the inner product spaces. क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से इनमें बांधा। That means there must exist an norm space which cannot be obtained by a inner product space. Okay, which cannot be an inner product in fact. Okay, so we'll see in a moment. इसका Hence, मतलब जो भी इनर प्रोडक्ट स्पेसेस होंगी वो नॉर्म स्पेस भी होगी और मैट्रिक भी yes, होगी। yes. ओके। Hence, inner product spaces are norm spaces and Hilbert spaces are Banach spaces. जो कंप्लीट हिल्बर्ट्स कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेसिस है, डेफिनेटली वो बनाक स्पेसिस भी होंगे। दैट्स मीन कि हिल्बर्ट स्पेस, पहले तो ये देख लें कि हिल्बर्ट स्पेस क्या है। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड अ हिल्बर्ट स्पेस। सेकेंडली, एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज अ बनाक स्पेस ऑफ कोर्स, क्योंकि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉन स्पेस होती है, तो ऑटोमेटिकली हिल्बर्ट स्पेसिस जो होंगी वो बनाक स्पेसिस जरूर होंगी। क्लियर? इन थ्री द बार डिनोट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये हमने इसको डिटेल से हम कर चुके हैं, तो ये बात भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट हम मूव फर्दर करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा देखिएगा। ये प्लीज़ इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ।
ये as expressing both properties together, we say that the inner product is sesquilinear. This means 1.5 times linear and is motivated by the fact that the conjugate linear and is also known as semi-linear, meaning half linear. It's less suggestive terms which we have shall not use. In fact, आप लोगों को अगर मैं इसको इकट्ठा करके बताऊं तो फिर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. आप देखें कि अगर आपके पास है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गैमा डब्ल्यू प्लस न्यू जी, तो ये हमारे पास क्या होगा? जी बच्चों बताएं ज़रा, प्लीज़ हेल्प मी. अल्फा बेटा बताएं क्या? चले मैं एक एक करके कर लेता हूँ. अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा z, that will be equal to alpha x comma z plus बीटा y comma z. और सेकंड में अगर हम x यहाँ पे अल्फा y प्लस बीटा z करें तो ये हमारे पास आएगा, बताएं क्या आएगा? अल्फा एक्स अल्फा वाई एक्स वाई प्लस अल्फा वाई एक्स एक्स जी आएगा. एक्स जी. तो अब ये देखें, ये फर्स्ट जो अपना जो आर्गुमेंट है इसमें ये लीनियर है, सेकंड में कॉन्जुगेट लीनियर है. ठीक है, जी. इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट लीनियर. लीनियर इन सेकंड आर्गुमेंट. ठीक है, तो ये फर्स्ट में लीनियर है और सेकंड में कॉन्जुगेट लीनियर है. तो ये अगर आपको याद रहेगा तो फिर कोई इश्यू नहीं आपको डील करते हुए इनको. The reader may show by a simple straightforward calculation that a norm on an inner product space satisfies the important parallelogram equality. ठीक है, तो जो नॉर्म जो इनर प्रोडक्ट से आ रहा होगा वो ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहे होंगे. जैसे हमने पहले एक देखा ना कि हमारे पास कोई भी जो नॉर्म स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस होती है, लेकिन हर मीट्रिक स्पेस नॉर्म स्पेस ज़रूरी नहीं है. तो उसके लिए हमने क्वेश्चन भी आपको पेपर में दिया था, आप लोगों को याद होगा. Likewise, we want a property which suggests that all norm spaces are not inner product spaces. So here is the parallelogram equality, which says that in a norm on an inner product space satisfies the important parallelogram equality. Okay, clear? That means not all norm spaces are inner product spaces. We conclude that if a norm does not satisfy this condition, it cannot be obtained from an inner product. Okay, that means not all norm spaces are inner product spaces. We'll see an example of such norm spaces. In fact, we have two examples in fact in this regard, which are very important spaces, but norm spaces, but not inner product spaces. Okay, so but before going to the examples, here is a definition for the orthogonality. Okay, an element X of an inner product space is said to be orthogonal to an element Y if the inner product of X and Y is equal to 0. Okay, तो अगर हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 आ जाए तो उस केस में हम बोलेंगे X is orthogonal to Y. Okay, and in writing we will write X orthogonal to Y. इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे X is orthogonal to Y. Okay,
जी This सर। is the same as when we are saying that the dot product of two vectors equal to 0. If two non-zero vectors, in fact, the dot product is 0, they are making angle 90. Okay, that means they are orthogonal. Similarly, in inner product space, we define the orthogonality in such a manner that if the inner product it is 0, then we say that x is orthogonal to y. Clear? Moreover, we said that two sets are orthogonal if every element of if every two elements from one set and the other set are orthogonal to each other. ठीक है, तो अगर हम दो सेट को उस वक्त ऑर्थोगोनल बोलेंगे अगर हमारे पास हर ए अगर ए से हो बी में से हो हर एक के लिए ये फुलफिल हो रहा तो एक उस दूसरे केस पे में हम बोलेंगे orthogonal हो। ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन है। जी क्लियर? जी सर। जी, तबस्सुम के अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी सर मेरी बच्चों, साइड पर इतना शोर है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं माइक को डरते ऑन ही नहीं कर रही। अच्छा ओके, कोई और भी अगर पूछना चाहे जी बच्चा। सर इंटरनेट का काफी इशू होता है। तो अभी तो इतनी प्यारी आपकी आवाज आ रही माशाल्लाह, कोई इंटरप्शन नहीं है। देखें मेरी बात एक जरा ध्यान से सुनिएगा, वो ये आप लोगों ने मिड टर्म एग्जाम अभी किया है, आप लोगों को फील हुआ होगा कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, वो आप लोगों ने अपने फेलो से भी डेफिनेटली क्लियर की होगी, तो आप अपनी क्लास में क्यों नहीं उसको क्लियर कर लेते? रमजान है सर, रमजान में सारे थके होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं भी शुक्र अल्लाह का रोजे से हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछने में थके पड़े हैं। ओके, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। ठीक है, देखिए रोजे का मकसद तो फिर यही है ना कि हम अपने काम भी साथ करें और साथ रोजा भी निभाएं। मकसद तो फिर यही ऐसे ही पूरा होगा ना। जी सर। ओके, अगर हम मतलब कि ओके मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं इस पे कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता क्योंकि ये हर एक का पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट जो हैं इनको साथ साथ आप क्लियर करें तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, ये मैं पेपर आपको देते हुए अंदाजा हुआ था। ये मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ। और पेपर देते हुए आप लोगों ने एक मेरी बात अगर याद हो तो आप लोगों को बहुत फील हुई होगी, वो ये मैंने ये कहा था शायद आपको याद हो कि जो मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरह से करेगा ना उसके लिए पेपर आसान होगा। जी, ऐसी बात मैंने जी आप सर लोगों ने को आपने 2 मिनट में कहा हाँ था सर आपने। जी, और क्योंकि बिल्कुल बाकी यही सब्जेक्ट होते हैं ना वो समझ आ जाती है और वो चीज जहन में भी बैठ जाती है। ये जो ये आपके वाला सब्जेक्ट है ना, ये बेटा ये नवीद कमर ने जो बात की है ना बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसने मुझसे कोई 2-3 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं शायद, ऐसे ही नवीद? तो जी सर मैंने तो 2-3 हाँ, तो इन लोगों को पता है मैं अगर कोई स्टूडेंट मेरे लेक्चर्स में कंटिन्यूसली वो रेगुलरली वो लेता है ना लेक्चर्स तो उसके लिए पेपर डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, सर अगर उस अगर लेक्चर ही तैयार कर लेना मतलब सुन लें दोबारा एक मरतबा तो क्लियर हो जाता है सारा। हाँ, और पेपर यूं समझें कि आप लेक्चर्स अगर किसी ने लेक्चर्स किए हुए ना तो उसके लिए पेपर करना कोई मुश्किल नहीं होगा, पेपर उसके लिए इजी होगा। सर इसके कंसेप्ट भी बड़े अच्छे हैं। चलें जी, शुक्र अल्लाह का आप कर रहे हैं साथ साथ। तो ये तो बस इट्स कमेंट के आप माशाल्लाह साथ साथ पूछ रहे तो आपको अच्छा फील हो रहा होगा। ठीक है, तो बाकी जी लोगों से मैं यही डिमांड करता हूँ कि वो भी साथ साथ इसको पूछें। ठीक है, तो अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। ओके, next there are some examples of inner product spaces. Very natural example is Euclidean space Rn. Okay, the Euclidean space Rn. As I have already mentioned to you that always remember that Rn is a beautiful space
and it is all kind of spaces, in fact, except you can say the compactness. It's a inner product space, it's a norm space, it's a Hilbert space, it's a metric space. So you can visualize everything from Rn. Okay, and more precisely, if I would like to mention that from Rn we generalize all these concepts. Okay, तो Rn से ही हम सारे ये concept को generalize कर रहे होते हैं. Okay, so how we can define an inner product on Rn? Okay, so here is the inner product. I'm sorry, here is the inner product. मैं इसको highlight कर रहा हूँ, तो ये आपके पास inner product है. You can very quickly observe that this is our dot product. Okay, so it is the dot product, and we can obtain the norm in this manner. Okay, and when we are talking about Euclidean space, remember that when we are talking about Euclidean space, it corresponds to the norm p norm, and p norm p is equal to 2. Okay, तो ये इसको याद रखना कि यूक्लिडियन स्पेस हमारे पास p is equal to 2 के केस में हम बात कर रहे होते हैं. ओके, तो उस केस में हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है वो हम इस तरह से ले रहे होते हैं. Likewise, you can. स्केयर ही आएगा. Sorry. एग्जैक्ट भी यहाँ पे स्केयर आएगा ना यूक्लिडियन मीट्रिक डिफाइन. Of course, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, ये उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है. Okay. Next, okay. तो अभी हमारे पास उसने बताया कि अगर हम n is equal to 3 पुट करें तो वो R3 में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की बात है, तो ये उसी तरह से है. Now here is the unitary space. Okay, this is called the Euclidean space, and it's from Rn over R है, ये R के ऊपर है. इसमें जो आपके पास स्केलर है वो R से हम ले रहे हैं. ठीक है, so here is the unitary space Cn. Unitary space Cn. Of course, this space is a vector space over C. Okay, तो ये C के ऊपर हमारे पास स्पेस है, और इस पे अगर हम इनर प्रोडक्ट की बात करें तो इस पे ऊपर इनर प्रोडक्ट हम इस तरह से डिफाइन करेंगे. क्लियर? जी सर. इसको अगर हम विजुलाइज करना चाहें उसमें सी स्क्वायर में तो ये बहुत इजी होगा आपको विजुलाइज करना कि अगर हम सी स्क्वायर की बात करें तो सी स्क्वायर से अगर आप दो एलिमेंट कंसीडर करें तो इसमें जो इनर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा. देखें, आपके पास ये जो xi1 और xin है रिस्पेक्टिवली, आपके पास xi1, xi2, that's equal to x, y is equal to eta1, eta2. ओके, तो इनका डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो x वाला पहले आएगा xi1 eta1 का कंजुगेट प्लस xi2 eta2 का कंजुगेट. ठीक हो गया, तो ये किसके ऊपर है? सी स्क्वायर के ऊपर इनर प्रोडक्ट है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर आप सी स्क्वायर को देखें, सी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू आर स्क्वायर, R4, आई एम सॉरी. ओके, गॉट माय पॉइंट. अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ये हमारे पास R के ऊपर है. अगर हम इसको भी R के ऊपर लेंगे तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल वही वाला बनेगा, लेकिन यहाँ पे सी स्क्वायर हम C के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है. अगर हम ये कॉन्जुगेट सिर्फ ईटास का क्यों ले? सर ये जो कॉन्जुगेट है, ये जो डिफाइनिंग है वो सिर्फ ईटास का. ये डिफाइनिंग इस तरह से हम कर रहे हैं.
प्लीज चेक सर दैट इसकी कोई आप खास रीजन है? जी बेटा, इसको आप अगर आप चाहते हैं आप एक्साई के ऊपर वो ले लें, तो फिर चेक करके देखिए क्या वो प्रॉपर्टी फुलफिल करेंगे। ओके। क्लियर? तो ये अच्छी बात है आपने जो की है कि अगर हम इस पे कॉन्जुगेट ले लें तो क्या वो प्रॉपर्टी जो इनर प्रोडक्ट वाली सेटिस्फाई होगी? प्लीज उसको चेक कीजिएगा। ये जो here we also why we have to take complex conjugate in 6, वही जो आप बात पूछ रहे हैं, this is essential, okay, तो so that x, x is real, x, अगर आप कॉन्जुगेट नहीं लेते तो x, x का जो कॉन्जुगेट करेंगे और जो इनर प्रोडक्ट करेंगे वो हमारे पास कोई रियल नंबर नहीं आ रहा होगा। अब आपको मेरा ख्याल आपको आंसर मिल गया होगा। जी सर, जी जी। Okay, so this is called the unitary space. It's very important. Time to time I would ask to you people कि मैं आपको स्पेसिस के नाम याद कराता रहता हूँ, क्योंकि देखें ये आप इनको नेम से याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा उनको उनके नॉर्म्स, उनके नॉर्म को, उनके इनर प्रोडक्ट को इस तरह से याद करना आसान होता है। So here comes the L2 space. Okay, the norm in example 2.27 is defined by this, इस तरह से हमने नाम को देखा था, can be obtained from the inner product defined by this, तो इसमें हम inner product इस तरह से define कर सकते हैं। Remember that यहाँ पे हमारे पास ये R के ऊपर vector space है और इसमें आप inner product इस तरह से define करेंगे। It's very very important related to the real applications। तो ये हमारे पास ये स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनफैक्ट इसको हिल्बर्ट स्पेस, ये इनफैक्ट हिल्बर्ट स्पेस है, जो पहले हमने दो की हैं वो भी हिल्बर्ट स्पेसिस है। ओके, तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है। In example 2.27 the functions are assumed to be real valued for simplicity in connection with certain application is तो इसमें हम वो कह रहे हैं कि ये जो स्पेस आप ले रहे हैं इसको आप R की बजाय C के ऊपर भी लेंगे तो उस केस में आपके पास इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन होगा। ओके, क्योंकि वो रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसलिए बाहर डालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन अगर हम लें तो वो इस तरह से आ जाए। ओके, तो इसमें आपके पास ये सारी बातें उसी तरह से आ गई। द कंप्लीशन ऑफ मीट्रिक स्पेस corresponding to 7 is the real space this, the similarly the completion of the metric space corresponding to is called the complex. We'll see in the next section that the inner product can be extended from an inner product space to its completion। वही बात जो पहले हम करते आ रहे हैं कि कोई भी आपके पास मीट्रिक स्पेस है, ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट हो लेकिन उसकी कंप्लीशन एग्जिस्ट करेगी। कोई भी नाम स्पेस है, ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट हो बट उसकी कंप्लीशन हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। लाइकवाइज कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ज़रूरी नहीं वो कंप्लीट हो लेकिन उसकी एक कंप्लीशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक हो गया। Together with our representation discussion, this implies that L2 is a Hilbert space. The Hilbert space L2, the space L2, little L2. So please tell me what's the difference between the capital L2 and the little L2, please. What's the little L2? Please, students. जी बच्चे बताइएगा। Little L2 sir है is a subspace of Hilbert space sir. अगर मैं आप लोगों का कोई इस तरह से जैसे पूछ रहा हूँ, इस तरह से आपका मिड टर्म ले लेते तो कैसा लगता है आप लोगों को? बेटर ही था बेटा L2 जो है ना, याद रखना ये सीक्वेंस स्पेस है, ठीक है। स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेस होती हैं, स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है। तो इस पे इनर प्रोडक्ट हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके,
convergence of these series follows from Cauchy-Schwarz तो inequality. जो कैपिटल L2 कह रहे हैं सर उसको वो फंक्शन स्पेस है, स्मॉल एल मैं लिटिल L2 की बात कर रहा हूँ ना, ठीक हो गया। तो इसमें इस तरह से हम, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं कोई 2-3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए अगर आप कहते हैं तो हम ज़रा रुक जाते हैं, ठीक है। तो फिर आप मीनवाइल आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहे तो कर लीजिएगा। मुझे आप प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों की अटेंडेंस किसी की रहती है तो प्लीज़ वो मुझे बता देना। जी सर मेरी रहती है आमना अनवर। आमना अनवर जी, आमना अनवर। नवीद कमर की भी रहती है। और जी बस सर मेरी भी लगा दें। आपकी हुई तो देखी नहीं आपने? वीज़ा आपके सामने तो। सर उजैर की भी रहती है। उजैर खुद क्या है? जी बसा आपने क्यों हैंड रेज किया? जी बेटा तो बसा आपने क्यों हैंड रेज किया है? सर वो मेरा खुद ही हो गया था, मैं नीचे कर रही थी, वो फिर हो जाता था, ओके तो मैंने जी नहीं किया था। ओके। आप मुझे बता दें मैं नेक्स्ट फिर क्रिएट करनी है। सर आयशा उजैर का की भी रहती है, उसने ग्रुप में मैसेज किया होगा। ग्रुप में मैसेज 10 दफ़ा करता रहे, जब तक इधर ज्वाइन नहीं करेंगे वो हैंड रेज नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं। ये उजैर खान की बात कर रहे हैं? सर आपने जी क्रिएट कर दी है ना ये अटेंडेंस? अभी करने लगा हूँ। सर आयशा रियाज में ही लगा दें लास्ट। आयशा रियाज जी, उजैर को कहे ना कि क्लास में क्यों नहीं वो यही मैसेज कर ले। सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। एक मिनट, आयशा रियाज तो जी, किया मैसेज। और कौन जी? सर साहिल अहमद खान। साहिल मुबर्रा अहमद। पास। एक मिनट बेटा, हैंड रेज करें, ऐसे नहीं, हैंड रेज करें, रेज और हैंड रेज करें, फिर मैं दिखाता हूँ। जो हैंड रेज करेगा उसकी अटेंडेंस होगी। करें जी हैंड रेज। जी साहिल अहमद, ओके। साहिल अहमद, अरूज फातिमा, ओके। साहिल अहमद आपकी तो हुई अटेंडेंस पहले, अरूज फातिमा की रहती है। और इनके अलावा मुबर्रा, हाँ, मुबर्रा अब्बास, ओके जी बेटा आपकी भी हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शकरुल्लाह, you are here, okay, you are present. How are you sir? I'm fine, शुक्रल्लाह, शुक्रल्लाह is present, okay. Okay sir, thank you. उज़ैर खान, उज़ैर खान ठीक हो गया बेटा, आपकी अटेंडेंस हो गई। अभी जो एब्सेंट है वो मैं बता देता हूँ, फिर मैं अटेंडेंस क्रिएट कर रहा हूँ दूसरे वाले। आयशा कामरान, अहमद हसन, मारिया इब्राहिम, ये लोग एब्सेंट, ठीक है जी। अरूज फातिमा आपकी भी हो गई है, उज़ैर खान आपकी भी अटेंडेंस हो गई।
जी बच्चों करें स्टार्ट जी हम। सर दोबारा अटेंडेंस लगा ली। जी बेटा हो गई, सर वो लाइट ऑफ हो गई थी मोहम्मद इब्रार सर की, प्लीज। हो गई, हो गई। थैंक यू सर। मैंने पहले वाली पे कैरी कर दिया, ठीक है। अहमद हसन, आयशा कामरान और अमारिया इब्राहिम, दे आर एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट इज जी स्टूडेंट स्टार्ट करो मैं। ओके जी बच्चों करें स्टार्ट जी, थोड़ा सा बेटा करें। ओके, the space LP when P not equal to 2 is not an inner product space, hence not a Hilbert space. It's very important कि अगर हमारे पास जो LP है वो अगर P जो है वो not equal to 2 है, फॉर एग्जांपल P1 है, P infinity है, P3 है, P not equal to 2 है, तो आपके पास वो इनर प्रोडक्ट स्पेस ही नहीं होगी, और अगर वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है तो वो हिल्बर्ट स्पेस भी नहीं होगी। हमने ये अभी स्टडी किया है कि LP स्पेस नॉट स्पेस होती है व्हेन P फ्रॉम 1 to infinity, ओके, but very interestingly only L2 is an inner product and also in a Hilbert space. All other spaces are not inner product spaces and hence not Hilbert spaces. जी क्लियर। अभी हम इसके प्रूफ की तरफ भी आते हैं। जी बच्चों ये बात समझ आई है? जी कोई हाँ हूँ कर दें बेटा। जी सर। ओके, एक तो ना हम जब ऑनलाइन बैठे होते ना, अब बिलीव मी पूरे हाल में सिर्फ मैं बैठा हूँ, ठीक है, और सामने मेरा डेस्कटॉप है और कंप्यूटर की स्क्रीन पे बोली जा रहा हूँ। यू कैन इमेजिन कि आप में से कोई ना बोले तो फिर मुझे क्या फील हो रहा होगा। सॉरी Okay. सर। Our statement means that norm of LP with P not equal to 2 cannot be obtained from inner product. We prove this by showing that the norm does not satisfy the parallelogram equality 4. What's the equality 4? The equality 4 says that please see this. X plus y norm square plus x minus y norm square is equal to 2 times norm of x square plus y norm square. तो उसमें अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो इसकी लेंथ का स्क्वायर, इसकी लेंथ का स्क्वायर, इन दोनों का सम करें तो x की लेंथ का स्क्वायर प्लस y की लेंथ का स्क्वायर का 2 टाइम्स होगा। तो ये पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ अगर होल्ड नहीं करता किसी भी हमारे पास नॉन स्पेस में तो वो कभी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं हो सकते, ओके। तो इसको अभी हम यहाँ पे देखते हैं। इन फैक्ट लेट अस टेक x इज इक्वल टू दिस। अगर हम x ले लें 1 1 0 0 ऑल आर 0, इसमें हमारे पास देखें कि ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 2 आ रहा होगा, ठीक हो गया। और p अगर मैं सॉरी स्क्वायर नहीं लेना हमने, p को अदर देन
2 लेना है। ओके, वाई आप ले रहे हैं 1 -1। तो इस केस में आपके पास नॉर्म का हो गया। नाम आप लोगों को पता है हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यू नो वेरी वेल, कि अगर हम नॉर्म की बात करें तो नॉर्म ऑफ एक्स जो होता है वो हमारे पास होता है सम, आपके पास क्या होगा, यहाँ पे होगा हम एक्स आई की बात करते हैं पी, और यहाँ पे आई फ्रॉम 1 to infinity, और यहाँ पे होल की पावर 1/p। अब यहाँ पे अगर हम 1 की पावर p करते हैं 1 ही आ जाएगा, 1 की पावर p करते हैं वो भी 1 आ जाएगा, और होल की पावर आप ले लें तो 1 + 1 2 आ जाएगा ना, इनफैक्ट 2 की पावर 1/p, तो 2 की पावर 1/p है। अगर p आपके पास 2 है तो ये 2 की पावर 1/2 आ जाएगा। अगर आपके पास p 2 नहीं है तो फिर इसको हमने डिस्कस करना है। y का भी इसी तरह से आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आप माइनस, तो यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पुट करना चाहिए, तो वो वही बनेगा आपके पास। तो इन दैट केस भी आपके पास 2⁻1/p। तो अगर हम इनके स्क्वायर की बात करें, ठीक है, 2/p आ जाएगा। तो इनको अगर हम सम करें, इसको और इसको सम करें, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास अगर डिफरेंस करें तो भी 2 आ जाएगा। जी, ये क्लियर है? जी बेटा, ये क्लियर है? ये 2 किस तरह से है? देखिए, सर ये मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। प्लीज रिवाइज कर दे, मेरा नेट चला गया था। प्लीज बेटा बताएं x + y क्या होगा? 1 + 1 2,0,0। और x - y क्या होगा? जी बच्चों, 0 2 0 2,0,0 0 0। तो अब इनका नॉर्म लेंगे तो वो 2 ही आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 की पावर p आ जाएगा, तो 2 की पावर p और 1/p कैंसिल होकर 2 ही रह जाएगा। ठीक हो गया। अब इधर भी स्क्वायर करना है, इधर भी स्क्वायर करना है, और फिर इनको ऐड करना है। तो चेक करें क्या पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या है हमारे पास, कि हमारे पास आएगा नॉर्म ऑफ x + y का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x - y इज इक्वल टू 2 x नॉर्म स्क्वायर + y नॉर्म स्क्वायर। तो चेक करें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन रहा है आपके पास, 4 + 4 8 बन रहा है, और इस साइड पे क्या बन रहा है, वो 0 हो जाएगा, 2 - 2। नो नो नो, यहाँ पे 2 की पावर क्या बन रही है, 2/p। ठीक है, इधर भी पावर 2 की पावर ओवर p बन रही है। ठीक है, ये मैं x - y की बात कर रही हूँ। तो 2 ही आ जाएगा ना, 0 नहीं होगा। देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा ना। जी क्लियर? सो दिस होल्ड्स ओनली व्हेन p = 2। ये सिर्फ उस वक्त होल्ड करेगा जब p = 2 होगा। ओके, LP is complete. This is a Banach space but not a Hilbert space. Hence LP with p not equal to 2 is a Banach space which is not an Hilbert space. So we have an example of a Banach space which is not an Hilbert space. Clear? yes sir. Yes, sir. ये पूछे तो मुड़ा Okay. Here is the space C of AB, a space of all continuous function on AB. तो इस पे अगर हम बात करें तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस भी नहीं है और हिल्बर्ट स्पेस भी नहीं है। ठीक है, आपको याद होगा C of AB जो है ये कंप्लीट स्पेस थी अगर मैक्सिमम के साथ अगर हम बात करें, लेकिन अगर हम वो इंटेग्रल वाले के साथ बात करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं बन रही थी उस केस में। और C of AB मैक्स नॉर्म के साथ ये इनर प्रोडक्ट स्पेस भी नहीं है, for which we have to take an counter example. Okay, let's observe that take x of t is equal to 1 and y of t is equal to t - a over b - a.
Obviously, it's a constant function. It's a continuous function. T minus a is a continuous function over some constant. Of course, it's again a continuous function. अब इन दोनों का नाम की अगर हम बात करें, इन दोनों का नाम वन होगा. इसका नाम वन, ये तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं. इसका नाम वन कैसे है? अब इसका जब अगर आप मैक्सिमम लेंगे, तो जब हम मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम आपके पास b है, तो b माइनस ए ओवर b माइनस ए विल बी इक्वल टू वन. तो इनका नाम आपके पास वन आ जाएगा. ऑन द अदर हैंड, अगर आप इन दोनों फंक्शन को सम करें, सम करके नॉर्म लें, तो इस केस में आपके पास नॉर्म 2 आ रहा है और इस केस में नॉर्म 1 आ रहा है. प्लीज़ बच्चों, ये मुझे दोनों नॉर्म आप कैलकुलेट करके व्हाट्सएप ज़रा करें. मैं चेक करता हूँ आप नॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं. प्लीज़ ये मुझे चेक करके अभी बताएं कि ये 2 कैसे आ रहा है और ये 1 कैसे आ रहा है. व्हाट्सएप पे सेंड करें अभी. जी स्टूडेंट्स कर रहे हैं बेटा. यस सर. सर इनका नाम अलग अलग करेंगे? अलग अलग ही कैलकुलेट करेंगे. x प्लस वाई का नाम और x माइनस वाई का नाम, दोनों का नाम अलग अलग करके बताएं क्या कैसे प्लीज ये सर, 2. वो जो नाम की प्रॉपर्टी हमारे पास होती ये थी ना, x ये प्लस y का नॉर्म हो. ये मैं पूछ रहा हूँ, ये 2 कैसे आ रहा है और ये 1 कैसे आ रहा है. सर एक तो नॉर्म की डेफिनेशन में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो x प्लस वाई का नॉर्म है वो x का नॉर्म प्लस y का हो जाएगा. x का भी 1 और नहीं y नहीं का भी बेटा, 1. और नहीं, आप गलत डायरेक्शन में बात कर रहे हो. अच्छा, इसमें करेंगे. इसमें तो गिवन है ना, आपके पास मैक्स नॉर्म गिवन है. कंटिन्यूस फंक्शन पे कौन सा नाम होता है? मैक्स नॉर्म होता है. जी करें जी. सर, मैक्स होता है. ओके सर, राइट.
जी बच्चों, अभी तक किसी ने सेंड नहीं किया। सर ये उसने खुद से ली हुई वैल्यूज। बेटा ये खुद से नहीं ली हुई, ये सर नीचे कैलकुलेट उसने उसको किया है। सोल्व किया हुआ है ना, देखिए तो फिर मेरी ये बात x सुने, प्लस। ये पहले तो आप अपने रजिस्टर पे ये लिखें, ये जो सामने है नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक मिनट। ये लिखें। हाँ जी लिख लिया। अब हाँ जी। इन दोनों का नॉर्म अलग से कैलकुलेट करके ये 2 कैसे आ रहा है और 1 कैसे आ रहा है। मीन वाई खदीजा ने ये सेंड किया, तो ये बड़े ही अजीब तरीके से किया, ये ठीक नहीं है। कुछ कुछ करीब है लेकिन ये ठीक नहीं है। सर t को उसने b से रिप्लेस किया है। क्यों किया? बेटा मैं आपको सर ये बताऊं, थोड़ा इस सा नीचे कीजिएगा। नीचे ऊपर इधर या बस बस। सर मारिया का ठीक है। चेक करते हैं बेटा। जैसे एलसीएम लेके ही होता है। जी और ये भी ठीक नहीं है, ये जिसने भी सेंड किया माहिराना, ठीक नहीं है। जी बच्चा। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, चलें मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मुझे ये बताएं, ये डेफिनेशन है आपके पास, ठीक है? आपके पास x जो है वो अगर मैं मतलब x ऑफ t फंक्शन है ना, तो इसको मैं ये फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है? आइडेंटिटी फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो मुझे बताएं कि x का जो नॉर्म है, ये वाली डेफिनेशन अब अप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? वन नहीं सर टी ही आइडेंटिटी आएगा। आपने कहा। नहीं, अच्छा चले मैं अब नेक्स्ट एक और आपसे इसको हेल्प करता हूँ आपकी। आप मुझे ये बताएं कि नॉर्म, ये डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैक्सिमम, अब x ऑफ t की जगह पे t लिख रहा हूँ, और मैक्सिमम कहाँ से, t फ्रॉम द इंटरवल ए बी। अब ये आप जरा बताएं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल से? बी
शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, शुक्र Yes. अल्लाह, ओह सर अब समझ आ गई है। शुक्र अल्लाह। सर आप मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू जी सर 2 है। मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम का इसमें आ रहा है। वो इंटरवल तो हम देख ही नहीं रहे थे, हमारी बस वो नीचे जो लिखी हुई सर ना हम उन्हीं को देख इंटरवल रहे को हैं। देख नहीं रहे थे। तो वो तो जो यही तो आपने x गलती प्लस कर रहे y थे, और x माइनस y लिखा हुआ ना, बस उसी को देखी जाए। यही तो गलती कर रहे थे ना, इसीलिए तो मैं बार बार कह जाता उसकी डेफिनेशन को देखें। आप जरा प्लीज मुझे x प्लस वाई और x सर अब माइनस वो हो वाई का, जाएगा, p की जगह b लगाएंगे तो वो नहीं मुझे कैंसिल हो जाएगा। करके दिखाएं, जैसे मैंने ये आपके सामने किया ना, ऐसे करके मुझे दिखाएं, फिर मुझे समझ आएगी कि आपने जस्ट b पुट किया है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की है। जी बच्चों अभी करके साइन करें। अब आपको समझ आ रही है बेटा कि ऐसे नहीं है ये चीजें। यस सर। जी बॉयज में से भी कोई कर ले कि वो उन्होंने नहीं करना। सर अब तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा। टी की जगह बी माइनस पुट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों 1 + 1। बेटा मैं आपको इन राइटिंग में देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह से उसको कर रहे हैं। जी ये इन्होंने सेंड किया है, मैक्सिमम ऑफ दिस सिंप्लीफाई करके इस तरह से है कि p माइनस, ठीक है। आप ये जो लिखा ना पुट t इज इक्वल टू b, ये रॉन्ग है। सर यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। सर तो हम देखो मेरी ठीक है बात सुनो बेटा, जी जब जी हम जी जी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो फिर पुट तो नहीं करने की, तो वो तो हमें पता है कि इसमें ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू इसकी b होगी ना। ठीक है सर बाकी ठीक है ना? बाकी ठीक। ठीक है सर। आई एम सॉरी, आपने ये x माइनस वाई वाला फाइंड किया? यस सर। ओके तो प्लस वाले में 2 सर आ मैं कर जाएगा रही इसमें, हूँ जी बस कर ठीक रही है हूँ। बेटा, ये हो जाएगा। ओके सर। ओके बाकी लोगों को भी समझ आ गई बेटा कि नहीं? सर आ गई अब। Okay, so we conclude that our parallelogram law does not hold for the space C of AB, so it cannot be a inner product space. So we have a lot of example in this sense. We have LP spaces, P not equal to 2. All LP spaces are not inner product spaces except P is equal to 2, and C of AB is not an inner product space. Okay. We finally mention the following interesting fact. We know that to an inner product there correspond a norm which is given by the 1. It is remarkable that conversely we can rediscover the inner product from the corresponding norm. Okay. In fact, the reader may verify the straightforward calculation for a real inner product space. We have this. तो real inner product space के लिए हमारे पास ये फार्मूला इस तरह से किया गया। तो ये पैरेललोग्राम लॉ से इनफैक्ट उसको बताया, ठीक है। अगर आपको नॉर्म का पता है, उस नॉर्म से आप इनर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। हो गया जी बच्चों। इमेजिनरी के लिए ये कॉम्प्लेक्स वाले केस में देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है Rn जो है वो नाम स्पेस है, नाम आपको पता है। जैसे इस नाम की बात करें, आपको नहीं पता कि उस पे इनर प्रोडक्ट हम किस तरह से बनाना है, ठीक है। वो जो डॉट प्रोडक्ट वाला इनर प्रोडक्ट हमने लिया हुआ ना, xi 1 into eta 1, तो वो कह रहे हैं कि वो इस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक हो गया। तो पहले आप ये कैलकुलेट करें, ये कैलकुलेट करें, डिफरेंस ले लें, फिर 1/4 करेंगे तो वही बन जाएगा। यू कैन वेरीफाई दैट। क्लियर? यस सर। ओके, so formula 10 is sometimes called the polarization identity. Okay, here are some problem, but we will not see these problems in detail. We'll move further.
प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। ओके, तो मैं इसकी एक्सरसाइज को इसमें स्किप किया। ये इनफैक्ट यहाँ पे इस चैप्टर को हम जरा थोड़ा सा क्विकली मूव करेंगे, और आई बिलीव दैट के अगले लेक्चर तक इसको मैं फिनिश करके तो अगले लेक्चर में मैं 4th चैप्टर पे आ जाऊंगा। ओके, so we'll see now further properties of inner product spaces. So far as we have seen a beautiful properties of inner product space, in fact we have seen such spaces which are not inner product spaces. In fact, inner product space satisfy the parallelogram law. Okay, now what are the further properties of inner product spaces? We will see in a moment. And one of these is very beautiful, the Schwarz inequality and triangular inequality. Okay, तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है, इसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें ये यूज हो रहा होगा। व्हाट्स द Schwarz inequality? An inner product and the corresponding norm satisfy the Schwarz inequality and the triangular inequality as follows. So what the A part is the Schwarz inequality, and second is the triangular inequality. Schwarz inequality says that the inner product, absolute value of inner product is less or equal to the norm of x, norm of y. इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। आपको याद होगा कि लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में आपने इस तरह की चीज देखी हुई कि a डॉट p की एब्सोल्यूट वैल्यू जो लेस और इक्वल टू norm of a, norm of, अगर a b वेक्टर्स है हमारे पास, ए बी हमारे पास क्या है, वेक्टर्स है। हम एग्जांपल लेके इसको चेक कर सकते हैं कि आपके पास v1 अगर है 2i + 3j और v2 आपके पास है j + i + j, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 डॉट v2 इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट, जी बच्चों 5 आ जाएगा। जी सर। ठीक हो गया। अब जरा मुझे नॉर्म ऑफ v1 बताएं क्या होगा। जी 13 सर, √13 √13 और v2 का नॉर्म क्या होगा, √2 सर। ठीक हो गया। अब इनका प्रोडक्ट करें, क्या बनेगा इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट √26 √26। अब √26 को जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके मुझे बताएं अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ रहा है। ऑफ कोर्स इट्स ग्रेटर देन 5, ये तो क्लियर है क्योंकि ये 26 का स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली 25 के स्क्वायर रूट से ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे ये इस तरह से होता है 5.099। शाबाश। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि ये जो इक्वालिटी है इसमें ये ग्रेटर है और ये लेसर है। समझ आ रही है? इस इनइक्वालिटी को हम Schwarz inequality बोलते हैं, Schwarz inequality। ओके, yes sir, where the equality signs hold if and only if x y is a linearly independent set, sorry linearly dependent, I am extremely sorry, linearly dependent। ये इनफैक्ट ये दोनों में चूज किए थे, ये linearly independent थे। अगर आप linearly dependent चूज करें तो इस केस में इक्वालिटी आएगी। अभी मैं आपको चेक करा सकता हूँ इसकी एग्जांपल। आप v1 ले लें फॉर एग्जांपल i + j और v2 ले लें आप 2i + यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, जरा अच्छी एग्जांपल लगेगी 4j। अब देखें v2 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2v1, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है ना। अब इसका जरा नॉर्म निकालें, क्या बनेगा v1 का नॉर्म, क्या बना नॉर्म बताएं बच्चों। √5 5. ओके, इसका क्या आ रहा है 20 20 आ रहा है। ओके, तो इसमें से 2 को कॉमन किया जा सकता है। तो अगर हम देखें कि इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट करें, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो आपके पास क्या बन रहा है 100। जी बच्चे, हाँ
100 आएगा सर, 5 × 20। ठीक हो गया। क्या बन रहा है आपके पास? 100 100 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 10 10 आ जाएगा सर। 10 होगा। 10 आ जाएगा। और आप ऑन द अदर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताएं क्या बन रहा है? 10 ठीक हो गया। जी तो इसका मतलब है अगर ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट नॉर्म सेटिस्फाई द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। ओके, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाला पार्ट जो है वो भी इसी तरह से, तो इस ये जो लेमा है इसका प्रूफ जो है मैंने आपको वेरीफाई कर दिया, लेकिन इसका प्रूफ मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। प्लीज इसको देखिएगा, ये डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको प्लीज आप अच्छी तरह से देखना है, और अगर कोई भी बात ना समझ आए तो अपने नेक्स्ट क्लास में पूछना मुझसे। जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कही जा रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। वैसे ही किसी कमाई कौन है? पता नहीं ये माइक ऑन करके क्या चेक करते हैं। ओके, तो प्लीज इसको आप लोगों ने देखना है, ये अच्छे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोगों ने मुझसे डिस्कस करनी है, ठीक है जी बच्चों? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज द कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपके पास कोई भी इनर प्रोडक्ट आप लें वो कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन की आपको बताई थी ना कि आप कोई सीक्वेंस उसमें इनपुट करें, अगर कोई सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ट करी एक्स तो एफ ऑफ एक्स एन इट विल आल्सो कन्वर्ट टू एफ ऑफ एक्स। लाइकवाइज आपके पास ये आपका समझ लें एफ फंक्शन है, वो कन्वर्ट करेगा एक्स वाई को। तो उसके लिए आपके पास क्योंकि 2 आर्गुमेंट है तो 2 सीक्वेंसेस होंगी, तो ये इस तरह से करे तो इसको हम बोलेंगे ये कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी वाली वो जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे ये जब 0 को अप्रोच कर रहे तो ऑब्वियसली ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन वाई एन है, ये एफ ऑफ एक्स वाई है, तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को फुलफिल कर। जी देखें, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ, ये अलग अलग किया, फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई की और उसके बाद इसको अलग अलग करके। जी इसके प्रूफ को 1 मिनट देख लें, अगर नहीं समझ आ रही तो फिर आप पूछ लेंगे। ऐसे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर। जी बच्चों क्लियर? हाँ जी सर, देख लिया। ओके, नेक्स्ट ये मैं कंप्लीशन का सिर्फ आपको स्टेटमेंट करवा देता हूँ, इसका कोई वो मैं अभी आपको नहीं करवाना चाहता प्रूफ और समथिंग लाइक दैट, लेकिन सिर्फ एक बताने तक है इसका। For any inner product space X where there exists an Hilbert space H and an isomorphism A from X into dense subset, the space H is unique except for isomorphism। तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जो हम पहले कर चुके हैं। नाम के लिए शायद हम लोगों ने इस तरह का किया था ना? बिल्कुल, नॉर्म के लिए, नॉर्म के केस में जी भी किया सर। था और मीटर के केस में भी। जी ठीक है, तो ये सब स्पेस की बात है। तो अब कोई भी सब स्पेस हिल्बर्ट स्पेस की कब हिल्बर्ट होगी, अगर वो क्लोज होगी। ये वही क्लोज वाला रिजल्ट है जो हम नॉर्म स्पेस में देख चुके हैं कि कंप्लीट, बल्कि मीटर स्पेस में देख रहे। y is complete if and only y is closed in H. If y is finite dimension then y must be complete। ये भी हम रिजल्ट कर चुके हैं।
पेपर में भी शायद इस तरह की मैंने बात पूछी हुई है। If H is separable, so is Y. Moreover, generally every subset of a separable inner product space is separable. अगर H separable है तो हर उसकी सबस्पेस separable होगी। तो उसने कहा प्रूफ जो सी का वो रीडर पे हम जोड़ते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा हमने कंप्लीट नहीं हुआ ना है। करना प्रूफ। नहीं अभी चलो रहने देते हैं। तो ये जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट और डायरेक्ट सम वगैरह है इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं होपफुली। मैं आप लोगों को आउटलाइन जो है वो एक दफा फिर शेयर करता हूँ। सर आज के लिए इतना ही काफी है। जी आज के लिए इतना ही काफी। सर जहाँ तक मिड हमारा हो गया है। हाँ जी देखिए मैं आपको सर बताता हूँ। अभी आज हमने जो है ना हिल्बर्ट स्पेस रिलेटेड एग्जांपल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस ऑर्थोगोनैलिटी ये 9 टॉपिक बेसिकली अभी हम बहुत पीछे मिड वाले से, लेकिन अभी हम नेक्स्ट मैंने कहा ना नेक्स्ट क्लास में ये मैं सारा कंप्लीट करना चाहूंगा ये वाला सारा आपने में पढ़ाना है इतने ज्यादा। हाँ इसको शॉर्ट करके कर लेंगे ना। ठीक है सर मैं ये कहने लगी थी कि जो हमारा मिड हो गया है ना अब वो हमारा फाइनल में तो नहीं ना आएगा, जो अब हम पढ़ रहे हैं मिड के बाद वाला वही फाइनल में करेंगे ना। बेटा ये हम बातें फाइनल के करीब जाके करेंगे अभी सर नहीं वो फिर हमने करना होता है ना साथ साथ, ऐसे अब पहले हमें पता होगा ना। साथ साथ किया होता तो आज मैक्सिमम वाला नाम निकाल लेना था। अगर सर हमने वो नहीं देखा था इंटरवल। तो ये तो फिर देखे ना साथ साथ वाली बात तो गलत हो गई ना। ये बच्चे ऐसे कहते थे इंसान मेन चीज को स्किप कर रहा होता है। अभी आप सभी टीचर्स हैं यू नो इट्स इनफैक्ट साइकोलॉजिकल इफेक्ट दैट कि अगर आपको कहा जाए कि सारा ही आना है तो फिर आप और अपने आप को मेंटली वो फील करेंगे वो इतना ज्यादा फाइनल में होगा। और ऑन द अदर एंड में आपको कह दूं नहीं वो मीट से पहले वाला खत्म है जो आप कर रहे हैं आप रिलैक्स हो जाएंगे। ऑल दो इट माइट पॉसिबल वो आगे वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। सो प्लीज बी ऑप्टिमिस्टिक। तो अगर अब हम ये भी नहीं ना बताएंगे तो फिर भी हमारी सुई सी चीज पटकी रहनी करना है कि नहीं करना। तो प्लीज आप बच्चों जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से तैयार करते जाएं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर ठीक हो गया सर तो मिड के बाद वाला सारा ही मुश्किल है, अभी तक तो कुछ भी नहीं था। ले आपके एक फेलो ने कमेंट कर दिया सर तो सही कमेंट किया। ये आप नहीं ना अभी पता आपको नहीं ना पता ये इनका कमेंट ठीक है। मिड के बाद ये वाला जो है ना 4th चैप्टर ये बड़ी इसमें वो स्ट्रॉन्ग सी बातें हैं। वहाँ पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह कंगालेंगे जो आप कह रहे हैं ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसको क्विकली मूव करना चाहता हूँ। हाँ जी नवीद क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर असल सिलेबस तो होगा। हाँ वो जो एडवांस वाला पार्ट है वो यहाँ से शुरू होगा। तो ये वाली जो बातें ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट जॉइंट ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट यूनिट, इनको ना मैं बहुत शॉर्ट करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है अगर वो करना चाहे तो आई एम अवेलेबल, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज हमारा 10th लेक्चर है ना? आज हमारा 10th वीक है जी, मेरा ख्याल है कि 10th वीक्स का होता है ये। सर नेक्स्ट वीक क्लास होनी है? ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास होनी है। आपको क्या यूनिवर्सिटी वालों ने सेंड किया छुट्टियों का शेड्यूल? नहीं 17 से फिर क्लासेस स्टार्ट का कह रहा था। हाँ तो 16 को आ रहे हैं नेक्स्ट वीक की तो क्लास नहीं बन रही, हमारी छुट्टी है नहीं बन रही शायद। बेटा हमें तो उन्होंने 15 तक छुट्टियों का कहा हुआ। सर हमें तो मेल आएगी ना वो 17 तक है, 17 से रिज्यूम होगी। सर वो पता क्या करते हैं फ्राइडे तक छुट्टियां कंसीडर करते हैं, सैटरडे और संडे को वो मानते ही नहीं है, हम बीच में ऐसे ही रह जाते हैं। बेटा मुझे तो हमारी यूनिवर्सिटी में तो हमें ये छुट्टियों का कहा हुआ है कि सैटरडे तक आपकी छुट्टियां। सर हमें जो मेल आई है ना वो है 17 से क्लासेस रिज्यूम होंगी। ओके कब है? मैं बेटा पूछ लूंगा फिर किसी मंडे को मैं किसी से पूछ लूंगा। अगर मुझे ये डायरेक्शन दी गई तो फिर मैं उसके मुताबिक आप लोगों से। ठीक है ओके सर ओके। या आप उसको ईमेल कर, पर ईमेल आपका करना बनता नहीं है, लेकिन आप तो क्लियर है। ठीक है चले बेटा मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। मैं अटेंडेंस के एक दफा फिर आप लोगों से पूछ लेता हूँ
के अहमद हसन, आयशा कामरान, मारिया इब्राहिम, these are absent. Okay. जी ठीक है बच्चों, अब आप लीव कर सकते हैं अगर किसी ने कोई बात सर पूछनी आपको तो। एडवांस ईद मुबारक। जी थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों को भी ईद मुबारक है, एडवांस कह लें ईद मुबारक जी। और दुआएं करनी है आप लोगों ने, रमजान एंड हो रहा है तो जरूर दुआओं में याद रखिएगा। तो आपने उम्मीद ही नहीं देनी जी बेटा। अब ये मैं उधर भी फिक्रा सुन रहा था जब राजा साहब को क्लास वो ले रहे दोस्तों के चुप था, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ईदी दी जाए, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं अभी आपको कोई असाइनमेंट वगैरह दे देता हूँ, उसको एक ईदी के तौर पर हम ईदी के बगैर ही ठीक है। अगर आपको ईदी चाहिए सर तो हमें अभी ईदी नहीं चाहिए। अभी आपको ईदी दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। नहीं सर, नहीं सर हमारे मिड के मार्क्स अच्छे दे दीजिएगा आप, वो हमारी ईदी तो आपकी असाइनमेंट हो सकती है, नहीं सर, मिड के मार्क्स तो डेफिनेटली वो मैं चेक करूंगा। अब वो मुझे पता तो उस वक्त ही चलेगा आपने किया क्या होगा, ठीक है। मतलब तो ईदी लेने से आपने इनकार कर दिया, ओके इट्स अप टू यू। अब जबरदस्ती तो नहीं किसी को दी जा सकती। डिफरेंट चीज देते हैं, असाइनमेंट्स तो पहले भी देते हैं हमें। हाँ सर ईदी डिफरेंट होती है, असाइनमेंट्स तो मैं पहले चले प्रोजेक्ट दे देते हैं, कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं। आपने ईदी देनी नहीं और जो दे रहे हैं वो हमने लेनी नहीं है। तो खाली ईद मुबारक ही ठीक है। ओके चले ठीक, चले ठीक है, चले आप भी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। जी सर, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी शफकत, क्या हाल आपके है? शफकत अब्बास, अस्सलाम वालेकुम सर मैंने ना एक पेपर सबमिट करवाया था वो ऑनलाइन, तो जी उधर से मैसेज आया था कि एक्सेप्ट हो गया है। माशाल्लाह, तो मैंने मुबारक। सर से बात की थी, डॉक्टर सईद साहब से, उनके साथ था ना। तो उन्होंने कहा था फीस जमा करवा दें, लेकिन मैंने ना पीएचडी के यूनिवर्सिटी के 1 या 2 लड़कों से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि एचईसी से रिकॉग्नाइज नहीं है जर्नल। हाँ कौन सा जर्नल है? तो मैंने अब फिर सर ने कहा था कि आप जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जर्नल है ना उसमें सबमिट करवा दें। तो मैंने करवाया, वो सर मतलब पूछना था कि वो कितनी देर बाद रिस्पॉन्स करते हैं, अभी 1 महीना हो गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी का तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो कभी नहीं उधर सेंड किया कोई पेपर। अब सर को आप कहें, सर उधर उनके हैं दोस्त, उनको किसी को कह के वो पूछ लेते हैं क्या स्टेटस है, ठीक है। ठीक है सर। वैसे लड़के कह रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल कर रहे हैं जो, वो कहते थे 2 या 3 महीने लग सकते हैं। हाँ जी हो भी सकता है, जल्दी भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आप सर से ही बात करेंगे, सर आपको गाइड करेंगे। मेरे ख्याल में तो उनके स्टूडेंट्स के हैं कुछ के पेपर पहले, तो उनको तो आइडिया होगा ना। मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं इस बारे में तो वैसे आपको नहीं बता सकता। वही उनसे भी बात नहीं की थी मैंने। हाँ, और इसके अलावा भी आप करते रहे ना काम, ठीक है।
जी सर, उसके अलावा भी मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब न्यूमेरिकल का भी। वो सर जो जीसी में थे ना हमारे सर थे, क्या नाम है उनका, न्यूमेरिकल के,